Okay students, today we will talk about the in-text questions on page number 216 of your NCERT book. So let us start. The previous video we have completed the series and parallel combination resistance. Now we will try to solve these questions. The first question is, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. These are 1 ohm and 10 raised to power 6 ohm. These both are connected in parallel, and in the B part 1 ohm, 10 raised to power 3 ohm and 10 raised to power 6 ohm are connected in parallel. So here we have to not to calculate, the question is asking judge the equivalent resistance, and we know that when we are studying this parallel combination, I have told you that the equivalent resistance in parallel combination is always less than the least resistance of any resistor in circuit. It means that the equivalent resistance जो होगा आपका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो लीस्ट रेजिस्टेंट की वैल्यू से भी कम होगा. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक 1 ओम का है और एक 10 रेज़्ड टू पावर 6 ओम का है. तो जब भी इनको पैरेलल में आप कनेक्ट करेंगे, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, 1 ओम. तो इसका जो आंसर आएगा ए पार्ट का 1 ओम से कम आएगा, और नियर अबाउट वो 1 ओम के इक्वली होगा, लेकिन 1 ओम से कम होगा, यानी 0.99 इस टाइप से कुछ आंसर्स आएंगे. एंड इफ वी टॉक अबाउट द बी पार्ट, द सेम इज हेयर ऑल्सो. यहाँ पे देखो 10 रेज़्ड टू पावर 3 ओम और 10 रेज़्ड टू पावर 6 ओम पैरेलल के साथ कनेक्टेड है 1 ओम के. तो यहाँ पे भी लीस्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 ओम. देयरफॉर वी कैन राइट हेंस इन बोथ द केसेस the equivalent resistance is less than 1 ohm, is less than your 1 ohm. Least resistance से minimum है. Okay, now the second question. Read the second question carefully and try to solve it. Pause करके solve कीजिए. Okay, what is the question? First of all, question is saying a electrical lamp is of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm, and all these are connected in parallel to a 220 volt source, जो कि आपके घरों में जो हाउस होल्ड में जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है. ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट. तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपसे पूछी है इसने. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक, यानी ये कह रहा है इन सब की जगह अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल आयरन लगाता हूं, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करता हूं इसी सोर्स के साथ, और वो कंडीशन क्या गिवन है, वो उतना ही करंट लेता है जितना ये तीनों मिला के करंट लेता है. तो उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. एक तो आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक तो ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा करंट कितना फ्लो होगा वो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है, जो सारे कनेक्टेड इन पैरेलल है, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
let us say Rp. So formula for 1 upon Rp, because they all are connected in parallel, so 1 upon 100 plus 1 upon 50 plus 1 upon 500. So the LCM is 500, this is 5, this is 10 and this is 1. So this is about 16 upon 500. This is not the resistance, we have to reciprocal it. So 500 upon 16. So this is, if you solve, we will get the answer. Let us say this is 4 4s are 16, 4 1s are 4 2s are 8, 125 divided by 4 ohm. This is the equivalent resistance of all these three devices which are connected to a source. Now current through these will be, current कितना हो जाएगा, current in, or you can say current through all the appliances, मिला के current. तो by applying you can say, by Ohm's law we know that V equals to IR and V is given to as 220 volt. So I will be V by R and that is R equivalent, that is Rp. So V is 220 and Rp is 125 by 4. So let us calculate this. So it will be your 220 divided by 125 into 4. So let us calculate this. 5 2s are 10, 5 5s are 5 4s are 20, 44, 20 44 into 4, 4 4s are 16, 4 176 upon 25. So this will be equals to your 25 7s are 175. So carry over 1.004, 7.04, that is I is 7.04 ampere. So this is the answer for the current through it, and we know that if the same current is drawing through the source which is connected to the electric iron, so the resistance will be equals to the equivalent resistance of all these three appliances. What I am saying now, if we say now if an electric iron is connected to same source such that it draws same current that is I equals to 7.04 ampere, then its resistance will be equal to 125 by 4 ohm. That is, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 125 by 4 हो गया आपका 4 3s are 12, 1s are 0.25 ohm. So the resistance of, you can say, therefore the resistance of electric iron equals to 1.25 ohm. So this is the answer. This is 7.04 ampere is the current and the resistance of electric iron is 1.25 ohm. You can also check it via the simulation also. Here I have done that this is the 100 ohm is my electrical lamp, 50 ohm is my toaster and 500 ohm is my water filter. These all are connected in parallel
and this is a 220 volt source line, 200 plus 20, that is 220 volt. Look at the current value, it is 7.04 ampere. What we have calculated, 7.04 ampere. So this is the solution for your second question. Now read the third question. Okay, this is the third question. What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो ये अपन ने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा था तब इन द प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था. ऑल्सो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, पुराने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है. ऑल्सो यू कैन फाइंड द PDF हैंड रिटन नोट ऑफ दिस वीडियो ऑन माई वेबसाइट, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ जाके. एनीवे, व्हाट आर द एडवांटेजेस आप बता सकते हैं. मैंने एडवांटेजेस बताए थे ऑफ कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन पैरेलल ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आपको याद रखना है, फर्स्ट व्हेन द अप्लायंसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, what happens in a parallel combination? सारे जो appliances है, each appliances will get same voltage. voltage क्या रहता है? same potential difference या फिर same voltage आप बोल सकते हो, as that of the battery. जो आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो as that of बैटरी का इक्वलेंट रहता है. विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके सीरीज में, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सीरीज कनेक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अपने जो घरों में जितने भी अप्लायंसेस वी आर यूजिंग, ये सारे 220 वोल्ट सोर्स पे क्या है आपके फिजिबल है. तो अगर आपने सीरीज़ कनेक्शन कर दिया तो वहाँ पे सीरीज़ में याद करो पोटेंशियल हर अप्लायंसेस में डिफरेंट आपके अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है. तो हर अप्लायंसेस को हर अप्लायंसेस को डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. बट इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो सारे अप्लायंसेस को क्या करता है, सेम वोल्टेज मिलता है और वही अपन को चाहिए होता है. तो फर्स्ट एडवांटेज तो ये हो गया. सेकेंड एडवांटेज क्या है, याद कीजिए, ईच अप्लायंसेज जो होता है जो अपन यूज़ करते हैं उन सबका क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग होता है और वो डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है. और डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर सकता है, ओनली एंड ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उनके ब्रांचेज में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है और सीरीज में वी नो दैट सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द सर्किट. सो ईच अप्लायंसेज have different resistance and require different current. Okay, and which is only possible, which is only possible in parallel connection, as in series current remains same throughout the circuit. सो जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना ही करंट मिलता है पैरेलल में, लेकिन अगर सीरीज कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा, सबको एक ही करंट मिलेगा जो कि नीड नहीं है और जो कि फिजिबल भी नहीं है. जो किसी को कम करंट चाहिए अप्लायंस को, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो अगर सीरीज़ में लगा दिया, मान लो किसी को कम करंट चाहिए और सर्किट में ज़्यादा करंट है, तो वो क्या होगा, अप्लायंस फ्यूज़ हो जाएगा. ओके, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फ्यूज़ हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा अप्लायंस. सो दिस इज़ द ड्रॉबैक.
ऑफ सीरीज. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर एक भी अप्लायंसेस फेल हुआ, इफ एनी वन appliance fails to work, other will continue to work in parallel connection. Whereas in series it is not possible. तो यहाँ पे एक भी अप्लायंस ख़राब हुआ तो क्या होगा, बाकी अप्लायंसेस आपके कंटिन्यू करेंगे, वर्क करेंगे, ऑन रहेंगे. बट सीरीज़ में अगर आपका एक भी अप्लायंसेस ख़राब हो गया तो सर्किट क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा. तो दीज आर द 3 important points which you have to be very careful while writing the answer for this question. Okay, so now next question. How can 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? तो देखो यहाँ पे पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो. ओके फाइन. देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी होगी कि देखो मेरे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस अवेलेबल, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम, इन्हीं का यूज़ करना है मुझे. और मुझे टोटल रेजिस्टेंस एक बार चाहिए 4 ओम और एक बार चाहिए 1 ओम. तो पहले 4 ओम को देखते. तो मेरे पास 2 है, 3 है, 6 है और मुझे चाहिए 4 ओम. तो किस तरह का कनेक्शन करूँ मैं? तो देखो 4 ओम, 4 जो वैल्यू है वो देखो 6 और 2 के बीच में लाई कर रही है. भाई अगर 2 से कम है तो मैं सारे को पैरेलल में लगाते देता जैसे कि बी में करेंगे. बट और मान लो 6 से ज़्यादा होता तो मैं क्या करता, सोचता कि इन सबको सीरीज़ में लगा देते. लेकिन ये जो वैल्यू है ये लीस्ट रेजिस्टेंस और हाईएस्ट रेजिस्टेंस के मिड के अंदर लाई कर रही है. कभी भी ऐसा आए तो सीधा सा आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है कि इनका मैं क्या करूँगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाऊँगा कि कुछ पैरेलल में होंगे आपस में और वो तीसरे के साथ क्या होगा, सीरीज़ में. तो 3 ही है आपके पास रेजिस्टेंस तो इजी हो जाता है. तो आप सीधा हिट एंड ट्रायल यूज़ करिए, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, सारे केसेस बना के देख सकते हो. तो देखो अगर मैं इसको 2 ओम को इस तरीके से लगाता हूँ, 3 और 6 को आपस में पैरेलल में लगाता हूँ. ये 3 और मैंने लगा दिए पैरेलल में. दिस इज़ माई 2 ओम. आई एम नॉट ड्राइंग द कंप्लीट सर्किट, आई एम जस्ट ड्राइंग द रजिस्टर्स कनेक्शन. सो 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम इस तरीके से अगर लगाया है मैंने तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द टोटल रेजिस्टेंस. क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैं इसका कॉम्बिनेशन देखता हूँ, इन दोनों का 3 और 6 का. तो 3 एंड 6 आर, इनका आर पी मान लेता हूँ. तो 1 अपॉन आर पी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6. सो आर पी की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम. नाउ अब मेरे पास सर्किट क्या हो गया, ये 2 ओम और इनका जो कॉम्बिनेशन था ये मुझे बन गया 2 ओम. तो आप देखो ये आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए. नाउ दे आर इन सीरीज, 2 ओम एंड 2 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस will be now equals to 2 plus 2 which is equals to 4 ohm. So this is the connection which you have to draw in the exam and show the calculation that it is coming to be 4 ohm. Okay, now the next one is 1 ohm.
अब 1 ओम इन तीनों रेजिस्टर्स को यूज करके कैसे कर सकते हैं? देखो 1 ओम क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम है, और वो तभी पॉसिबल होता है व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन तीनों को अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं, तीनों को पैरेलल में लगाया मैंने, this is my 2 ohm, this is my 3 ohm and this is my 6 ohm. So 1 upon R total ही हो गया अब तो ये 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. So LCM is 6. This is 3 plus 2 plus 1 which is 6 by 6. So RP is equals to 1 by 1 which is 1 ohm. So this is the answer for your B part. Easy है? Okay. So last question. What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 and 24? तो अभी डिस्कस किया, सिंपल है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट क्या है आपका, फॉर हाईएस्ट कनेक्ट ऑल इन सीरीज, सबको सीरीज में लगा दो, सबसे हाईएस्ट चाहिए तो आर टोटल क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 इज 24, 24 प्लस 24 इज 48 ohm. So this is the highest resistance that can be secured by using these resistance. And for the lowest we know that lowest कब होता है, जब आप सभी को क्या करो, कनेक्ट ऑल इन पैरेलल, ये याद रखना है आपको ऑलवेज। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर टोटल विल बी 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 upon 12 plus 1 upon 24. Take the LCM. LCM is 24. 6 plus 3 plus 2 plus 1. You can solve it. 6 plus 3 9, 9 plus 2 11 plus 1 12 by 24, 1 upon RT. Don't forget to reciprocal. I repeat again and again in each one of my video. So resistance total is 24 by 12 which is 2 ohm. So now look at the value of this total resistance 2 ohm. It is the least which can be possible only when you connect all these in parallel. तो देखो 2 ohm जो value है, it is the value lower than the least resistance which is 4 ohm. So this is the solution for the in-text question on page number 216. Okay, so try it, and in the next lecture we will discuss about the next topic, that is the most interesting topic, that is heating effect of electric current and its application. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय भी करें।